I'm very happy to be here, and today I have not to tell anything to anybody, but we have come with a very clear idea that we have to make our area deafness free. So the only thing which I want a cooperation from everybody, that let's make India deafness free. Deafness is a program by the Government of India. It's an essential program. It starts right from the birth of a child till we are alive. So it has 3 phases. The control of deafness program was introduced somewhere in 90s, late 90s, and the idea was that we should not have any child who is born deaf, who cannot speak or who cannot hear. जो हमारे पुराना एक कल्चर है कि ये तो बॉलर है या ये है, हमें उस कंसेप्ट को चेंज करना है. So what I request is that we all take a pledge today that we'll contribute to everybody that we can make India deafness free. इसमें सबसे ज़्यादा जरूरत मेरे colleagues हैं, अनुरागनी है, नेहा है, my Rishabh and Manmeet, everybody has come. The idea is we are spreading this from the day we had the World Hearing Day this time, where we called our post-op patients to say that what they have achieved when we have done surgeries on them. अब क्योंकि ये नेशनल प्रोग्राम था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से most of the states, they have started programs at the local levels where even the high-end implants, which used to cost around 7 to 8 lakhs, is given by the government of India. So अगर हमें इतनी फैसिलिटीज है, प्रॉब्लम इसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा डेफ पैदा होता है, सो ब्रेन मैचुरेशन का एक टाइम होता है और स्पीच सेंटर उस दिन खुलता है जिस दिन हमारे ब्रेन में फर्स्ट साउंड पहुंचती है. अगर वो फर्स्ट साउंड नहीं पहुंचती तो हमारा स्पीच सेंटर नहीं खुलेगा, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम कि वो बच्चा हमेशा डेफ म्यूट रहेगा. आफ्टर 10 years ऑफ एज, फ्रॉम द बर्थ टू 10 years, ब्रेन बहुत स्पास्टिक हो जाता है. बाय स्पास्टिक आई मीन कि जो साउंड सिग्नल 10 साल की उम्र के बाद जाएगा वो उस हद तक परसीव ब्रेन नहीं करेगा, बिकॉज देयर स्पास्टिक चेंज. और एनी सर्जिकल इंटरवेंशन आफ्टर 10 years विल नॉट हैव दैट रिजल्ट. जब हमारे पास एक छोटा बच्चे को कोई पेरेंट्स लाते हैं, मे बी 1 year, 2 years, 3 years old, हम उसको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहते हैं कि योर चाइल्ड इज गोइंग टू अ नॉर्मल स्कूल. Please don't send your child to a school for deaf and mute people. So that is the awareness we want to create all over the country. So at the 10 years, we can say 99% were viable. So that is that we can say yes. Now we can say with authority, I am into the this ENT for the last 3 decades, and I can say with authority, if you do an implant at a right age, it will give you a normal hearing throughout the life. So this is a child, that's an implant which has a outer part of the implant. I will not go into the surgical details. So the child will have this sort of thing, and now we have a new thing where we will not wear this sort of, external devices. That's a magnetic ring, small ring. It can be clipped on the head, which can be under the hair, and that will act the same way as these implants work. So this is what Revolution Aesthetics Institution. मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम इंडिया को डेफनेस फ्री बनाएं. हमारी कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन पॉपुलेशन ऐसी है जो हियरिंग लॉसेस सफ़र कर रही है, और इस एम को पूरा करने के लिए मैं चाहता हूं कि ये मैसेज हर उस इंसान को जाए जिसको कम सुनता हो. डेफनेस में हम 2 टाइप की कैटेगरीज के पेशेंट्स होंगे. एक वो पेशेंट जो पैदा ही डेफ हुए, बॉर्न डेफ, और बॉर्न डेफ में 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक सिंड्रोमिक, एक नॉन सिंड्रोमिक. इन सारे केसेस में अगर बच्चा 10 साल की उम्र से पहले प्रेजेंट करता है तो कॉक्लियर इम्प्लांट के द्वारा इनको नॉर्मल हियरिंग दी जा सकती है. दूसरा ग्रुप है जिनको सडनली, जो नॉर्मल थे, सडन हियरिंग लॉस हुआ और सडनली दे गॉट अप इन द मॉर्निंग और वो कहते हैं मुझे नहीं सुनना. उन बच्चों को भी और उन इंसानों को भी अगर वो टाइम में प्रेजेंट करें, अगर वो 48 आवर्स में आ जाते हैं, तो हम 90% तक लोगों को नॉर्मल हियरिंग दे सकते हैं. जितना टाइम निकलता जाएगा उतने चांसेस ऑफ रिकवरी कम होते जाएंगे. जो कॉक्लियर इम्प्लांट है वो अर्ली स्टेज, अगर
7-8 महीने का बच्चा है उसमें इम्प्लांट हो सकता है। और अगर किसी बच्चे में 4-4.5 साल तक की एज में कॉकलियर इम्प्लांट हो जाता है तो वो बच्चे हम मान के चलते हैं एक नॉर्मल स्कूल में जाएंगे, क्योंकि उनका हियरिंग के साथ साथ स्पीच नॉर्मल डेवलप होगा। इसलिए हम हर उस पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को नहीं सुन रहा, प्लीज़ उनकी इन्वेस्टिगेशंस करें। आजकल तो जो न्यू जनरेशन आ रही है उसमें एक मैंडेटरी चीज़ है कि जो बच्चे अब पैदा होंगे उनका पैदा होते से ही ऑटो अकूस्टिक मिशन कोई एक टेस्ट होता है जिससे हमें पता लग जाएगा हियरिंग लॉस कितना है। वो कोई टेस्ट होना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ है कि कोई भी बच्चा उस टेस्ट के बिना हॉस्पिटल से भर नहीं जाए, और अभी तक इतना अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं है, पर दिस इज़ अ लॉ। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि न्यू बॉर्न हमारा बच्चा 1 दिन का है, हमें ये पता होगा कि बच्चा नॉर्मल हियरिंग है या नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट दिस साइंस हैज़ अचीव्ड। एक लास्ट मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं ईयर में, द ईयरफोन्स, द गैजेट्स, प्लीज़ अपने बच्चों को डिस्करेज करें कि वो ना यूज़ करें। कारण होता है कि जब हम ईयरफोन यूज़ करते हैं हमारा नॉइज़ लेवल यूजुअली 60-70 डेसिबल रहता है, और हमारे ईयर की कैपेसिटी है कि अगर 70 डेसिबल से ज़्यादा हियरिंग एक्सपोजर होगा आधे घंटे के लिए तो परमानेंटली हेयर सेल्स डैमेज हो जाए। सो अगर हमने अपने बच्चों को सारी उम्र चाहते हैं कि अच्छा सुने तो आप हाई टोन और ईयरफोन्स को अवॉइड करने की